All right. So from today we will start next chapter, laws of motion. To be specific, it is Newton's laws of motion. So obviously all of you know Newton's laws of motion कौन कौन से है. But to start any chapter एकदम basic से ही हम लेंगे. Right from very basic, which is introduction. Last chapter में कौन सा था last chapter? Motion in a plane. Motion in a plane में you have defined what is motion. Do you remember what is motion? The change in position of object with time. Okay, so you know any object is said to be in motion if it is changing its position with time. For example, initially object किसी एक पॉइंट पे था, रेफरेंस पॉइंट पे था, यहाँ पे था, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया. With time, this object is changing its position. So when the object changes its position with time, it is said to be in motion. तो ये आपको already पता है. So when an object changes its position with time, it is said to be in motion. It is said to be in motion. All right. So अब हमको तो पता है it is said to be in motion. Now the thing is, हमने last chapter में we have studied. In the last chapter we have studied various physical parameters related to motion, जैसे displacement, distance, so on and so forth. Okay. अब जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसका जो भी स्टडी होगा इट इज ऑल कॉल्ड एज मैकेनिक्स. तो पहले पता होना चाहिए द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन इज नोन एज मैकेनिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन दो इट इज वेरी सिंपल, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज मैकेनिक्स, बट व्हेन यू गो टू हायर लेवल इंजीनियरिंग डिग्रीज या अदर डिग्रीज, मैकेनिक्स क्या होता है वो उस स्टेज पे पता नहीं होता. सो यू शुड नो एनी ऑब्जेक्ट if it is in motion, the study of that object is called as mechanics. So the study of objects in motion is known as mechanics. Is known as mechanics. Right. So motion का study, that is called as mechanics. Right. So basics must be very clear. When an object changes position with time, it is said to be in motion. इसका जो भी आप फिजिक्स करोगे, इक्वेशंस बनाओगे, इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, वेलोसिटी फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, इट इज ऑल अंडर द ब्रांच कॉल्ड एज मैकेनिक्स. द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन इज नोन एज मैकेनिक्स. अब मैकेनिक्स के फर्दर टू ब्रांचेस है. सो mechanics can be classified into two branches. Mechanics is divided into two branches. उसमें नंबर वन स्टैटिक्स. याद है क्या? एक ये स्टैटिक्स वर्ड हमने पहले भी कहीं देखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. उसमें अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. सो स्टैटिक्स मतलब in this case we deal with objects at rest. और object at rest का दो मतलब होता है. अब एक तो object rest पे कब होगा? जब उस पर फोर्स लग ही नहीं रहा है, there is no force, या फिर there are forces but which are balanced. For example, simple सा example है, हमारे पास एक object है. Let us take this object. यहाँ से मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F, और उतना ही फोर्स मैं अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई कर रहा हूँ F. So these two forces are equal and opposite and acting at the same point, same object, they cancel out. इसको हम बोलते हैं the forces are in equilibrium. The forces are balanced. They are called as equilibrium forces here. याद होगा वो एक गेम होता था जिसमें रस्सी आती है, एक साइड से एक टीम खींचता है, दूसरे साइड से दूसरा टीम खींचता है. अगर दोनों ने सेम फोर्स लगा दिया तो द ऑब्जेक्ट विल बी राइट एट द सेंटर. क्या बोलते हैं उसको? हाँ वही समथिंग. आई एम सॉरी, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट. ओके.
So basically statics matlab the study of objects at rest. So in statics we deal with objects at rest, we deal with objects at rest, or in equilibrium. Equilibrium matlab forces balance each other, or in equilibrium under the action of balanced forces. क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे इसके लिए नहीं होगा क्योंकि उसका फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा है. ऑफ कोर्स now you are sitting here, you are at rest, it doesn't mean no force is acting on you. There is a force acting on you which is gravitational force, but that gravitational force is balanced by a normal reaction. आप बेंच पे बैठे हो and then your weight is downwards but you are sitting on the bench, मतलब आप बेंच पे फोर्स लगा रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और बेंच आप पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, so that is why the forces are balanced. So it means object can be at rest if there is no force or if the forces are balanced, right? So object अगर मोशन में होगा तो उसका स्टडी को हम बोलेंगे मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में दो पार्ट है स्टैटिक्स. आप बोलोगे मोशन में कहाँ है, रेस्ट पे. तो यू विल सी बीइंग एट रेस्ट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मोशन. समझेगा आगे जाके. मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा. ऑल ऑफ यू आर नाउ सिटिंग एट रेस्ट but I am moving and I am observer, and because I am moving and I am looking at you, for me you are not at rest, for me you are moving. तो हम देखेंगे even state of rest is actually state of motion. हम आगे देखेंगे वो, right? दूसरा ब्रांच. तो पहले ब्रांच में we will be dealing with objects which are at rest or the forces on the object are balanced, so forces are cancelling each other. And then second is kinetics. It is not kinematics, it is kinetics. So kinetics basically statics matlab we will study objects at rest. So kinetics matlab in kinetics we deal with moving objects. In kinetics we deal with moving objects which are in motion. अभी जो kinetics है इसके और दो parts. तो let us make a tree diagram so that you can understand. हमने मोशन की जनरल स्टडी को बोला है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में है दो ब्रांचेस, एक है स्टैटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स. स्टैटिक्स एंड यू हैव काइनेटिक्स. अब काइनेटिक्स में वापस से दो ब्रांचेस हैं. एक को आप बोलोगे काइनेमैटिक्स, जो आपने ऑलरेडी सीखा है. इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स लिखे थे क्या? कौन कौन से इक्वेशन थे काइनेमैटिक्स से? v इक्वल टू u प्लस एटी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. वेरी गुड. तो काइनेमैटिक्स एंड यू हैव डायनामिक्स. अभी डायनामिक्स क्या है हम देखेंगे बाद में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल kinetics. In kinetics we deal with moving objects, and kinetics can be further classified as number 1 kinematics, and of course number 2 dynamics. दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? Can you think of the difference between these two? Kinematics is the study of motion, but the cause of motion is not considered. Exactly. So when you study the motion of object without considering the cause of the motion, for example, पिछले चैप्टर में हमने कहीं पे भी ये नहीं बोला था except for circular motion, वो छोड़ के हमने कहीं पे भी ये नहीं बोला था कि वेयर इज द फोर्स, व्हिच इज द फोर्स एक्टिंग. हमने सिर्फ बोला कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करो, एक्सेलेरेशन इतने टाइम के बाद. v इक्वल टू u प्लस एटी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, sn इक्वल टू u प्लस a by 2 into 2n minus 1.
हमने कहीं पे भी फोर्स मेंशन ही नहीं किया. डिड वी मेंशन एनीवेयर फोर्स? नो, एक्सेप्ट फॉर सर्कुलर मोशन. उसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं. दैट वाज अ स्पेशल केस. तो जब आप बॉडी के मोशन का स्टडी करोगे, when you study the motion of an object without considering the cause of the motion, then such study is called as kinematics. और kinematics में कुछ कुछ टर्म्स, फिजिकल पैरामीटर्स बार बार आते रहेंगे, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी. तो ये जितने भी इक्वेशन हम बार बार बोल रहे हैं उसमें वही तो है, v, u, a, t, s. so kinematics में it is the study of motion of object without considering the cause of motion. मतलब फोर्स, यहाँ पे फोर्स की बात ही नहीं है. विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स, cause of motion, right? And commonly used parameters will be, in this case, are commonly used parameters are कौन सा? डिस्टेंस कवर्ड, मतलब पाथ लेंथ. फिर आ गया डिस्प्लेसमेंट. देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट स्पीड, वेलोसिटी, acceleration, etc., so on and so forth. Acceleration. Dynamics is also the study of motion of object, but now considering cause of the motion, right? तो for example, एक object है, object is moving, तो वो क्यों मूव हो रहा है? For example, real life example, I have object here. ये object को मैंने रिलीज कर दिया, right? तो क्या हुआ? इट इज फॉलिंग डाउन. व्हाई इट इज फॉलिंग डाउन? ग्रेविटी. सो यू हैव मेंशन्ड हियर ग्रेविटी. और आप बोलते हो इसका स्पीड भी बढ़ते जा रहा है, मतलब दिस एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी. सो द मोमेंट यू मेंशन द कॉज ऑफ मोशन, देन यू आर टॉकिंग अबाउट डायनामिक्स. सो हियर it is the study of motion of object, the moving objects, motion of object, taking into consideration cause of the motion. और इस केस में जब हम बोलते हैं कि कॉज ऑफ द मोशन कंसीडर करना है, तो हम बोलेंगे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा था, कौन सा टॉर्क एक्ट हो रहा था, कितना मोमेंटम था. So here it will be more or less commonly appearing physical parameters will be commonly used parameters are force. Then you can talk about torque. What is torque, by the way? Okay, force into displacement, fine, वो तो वर्क भी होता है वैसे. फोर्स into perpendicular distance is torque. लेकिन what do you mean by torque? What do you understand by torque? Moment of force. But what do you understand by that? This is all physics, physical language you are talking. I am talking about real life. दिन में आप, I don't know how many times you use this torque to open the door. तो फोर्स कभी भी लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है. जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है तो उसका कॉज क्या है? फोर्स. ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन ओनली व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट. वेयरएज जैसे दरवाजे को मैंने ओपन किया या क्लोज किया, सो वी हैव रियल लाइफ एग्जांपल हियर. आई अप्लाइड अ फोर्स, बट दिस फोर्स विल टेंड टू रोटेट द ऑब्जेक्ट. तो टॉर्क इज द सोर्स ऑफ रोटेशनल मोशन. तो जब भी आप स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करोगे तो फोर्स आएगा, और जब भी आप रोटेशनल मोशन की बात करोगे तो टॉर्क आएगा. गोइंग वन स्टेप अहेड, वैसे हम आगे जाके डिफाइन करना ही वाले हैं. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन?
हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड, बट व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? Okay, good. Object at rest will remain at rest, or if it is in uniform motion, it will remain in uniform motion unless an external unbalanced force acts on it. Unbalanced नहीं तो वो गेम जैसा हो गया, दोनों साइड से कोई खींच रहा है with same force and object is going nowhere. So external unbalanced force चाहिए. Object at rest will remain at rest. Or if it is moving in with uniform velocity, it will keep on moving with uniform velocity unless external unbalanced force acts on it. मतलब ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज होने नहीं देता, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, मूव हो रहा है तो मूव हो रहा है उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में. किसने रोका स्टेट ऑफ चेंज करने से? किसने रोका स्टेट को चेंज करने से? सिंपल क्वेश्चन, हु हैज स्टॉप्ड द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स रेस्ट स्टेट? एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, वो क्यों रेस्ट से मोशन में क्यों नहीं आ रहा? किसने रोका? एक ऑब्जेक्ट, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, देयर इज नो ग्रेविटी, देयर इज नथिंग, एक ऑब्जेक्ट मैंने स्पेस में छोड़ दिया और वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो वो अपना वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज कर रहा है, डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज कर रहा है? किसने रोका? किसने रोका? उसके पास क्या है? एक इनर्शिया ऑफ मास, मतलब उसके खुद के मास ने उसको अपोज किया स्टेट चेंज करने से. तो वहां पे लीनियर में आप इनर्शिया को बोलते हो मास, और वैसे ही रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वो हम 12th में सीखेंगे. सिर्फ आज हमको बेसिक आइडिया देखना है. वी जस्ट नीड टू नो कि स्टैटिक्स क्या, काइनेटिक्स क्या, काइनेमैटिक्स क्या और डायनामिक्स क्या. तो काइनेमैटिक्स में we study motion but without considering any cause of motion. Dynamics में we study motion with taking into account cause of motion. अब मोशन अगर स्ट्रेट लाइन है तो फोर्स की बात करनी पड़ेगी, जब फोर्स की बात होगी तो इनर्शिया की बात होगी, इनर्शिया मतलब मास. जब रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल मोशन का कॉज क्या है? टॉर्क. और जो फिजिकल प्रॉपर्टी रोटेशनल मोशन का स्टेट चेंज करने के लिए अपोज करेगा उसको बोलोगे रोटेशनल इनर्शिया. एंड commonly used parameters will be force, torque, momentum, etc. etc. तो ये सब आते रहने वाले हैं आपके पास. You are going to see this again and again. So basic idea: mechanics, statics, and kinetics. Object at rest, and here moving objects. Here without considering cause of motion, without considering force मतलब cause of motion, taking into consideration cause of motion. Okay, now अब रियल लाइफ में you will come across different types of motion. उसमें से दो तो हम डिस्कस कर चुके हैं. एक है, दो नहीं तीनों डिस्कस कर चुके हैं. एक है स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन. दूसरा था सर्कुलर मोशन. तीसरा था मोशन में प्लेन, तो सर्कुलर मोशन ही है. तीसरा कौन सा मोशन था जिसका एक बहुत बड़ा एक इक्वेशन हमने डिराइव किया था, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. कौन सा मोशन था? क्रिकेटर जब बॉल को मारता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट. अब रियल लाइफ में यू विल कम अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन. तो वी शुड नो कि ये मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कब जाएगा, वो सर्कुलर मोशन में कब जाएगा, और वो पैराबोलिक पाथ कब फॉलो करेगा, कौन डिसाइड करेगा? बेसिकली हु विल डिसाइड? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फोर्स, यस, एंड आई एम आल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं डिसाइड करूंगा. हाँ, मुझे पता है मैं ऐसा फेंकूंगा तो वो प्रोजेक्टर. कौन डिसाइड करेगा? मतलब कौन सा फिजिकल पैरामीटर डिसाइड करेगा कि मोशन स्ट्रेट लाइन आने वाला है, या मोशन सर्कुलर होने वाला है, या मोशन पैराबोलिक होने वाला है. इट डिपेंड्स ऑन टू क्वांटिटीज. एक इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आपने इनिशियल वेलोसिटी कैसे दिया, दैट विल डिसाइड. दूसरा
डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। आपको याद है, एक टेबल ही बना लिया था हमने, इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था आपको, अगर वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो इन दैट केस एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। नंबर 2, अगर वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। इसको बोलते हैं इनलाइन। इनलाइन मतलब पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। और अगर दोनों ही चेंज हो रहा है तो 2 cases. Good. So basically in real life you will come across many type of forces. In real life we come across many different types of motion. We come across various motions like straight line motion, linear motion, like circular motion, and also you can come across parabolic path मतलब projectile motion, और you can come across, और भी सीखा है आपने? नहीं, वो सर्कुलर मोशन में हो गया, और रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन एक्सेट्रा। कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, इट इज डिसाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट? द ट्रैजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट is decided by initial velocity and acceleration. So number 1, let us talk about linear motion. अब जब हम linear motion की बात कर रहे हैं तो इस केस में 2 केसेस हो सकते हैं। एक, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट शुरू से ही रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सो यू कैन हैव एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट रेस्ट इनिशियली, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, राइट? फॉर एग्जांपल, वापस देना मुझे, मेरे काम का है, ओके? दिस ऑब्जेक्ट इनिशियली अगर रेस्ट पे है तो अब इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का जो भी डायरेक्शन हो, यहाँ पे हो, ऊपर हो, इस तरफ हो, ऊपर से रिलीज कर दिया, तो अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आप इनिशियल एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में दो, कैसे भी दो, इट विल ऑलवेज परफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, नंबर 1। So in case of linear motion, if the initial velocity of the object is 0, then doesn't matter, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी दोगे, एक्सेलरेशन दोगे, तो इट विल ऑलवेज परफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। गुड। अभी आप बोलोगे फिर प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों परफॉर्म होता है? क्योंकि ग्रेविटी भी है ना। तो जब हम बोलते हैं कि इनिशियली लिनियर वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड देन यू गिव इट वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन, you give acceleration in any direction, it will always go along straight line. अगर ग्रेविटी नहीं होता तो कहां जाता? सीधा ऊपर, बाहर स्पेस में गया। ओके, गुड। तो लीनियर मोशन कब होगा? नंबर 1, लीनियर मोशन कब होगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। इसके 2 केस हैं। एक, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो इन दिस केस initial velocity may or may not be 0, may or may not be 0. If initial velocity is 0, then acceleration given to the object will lead to
will lead to straight line motion, will lead to linear motion. Doesn't matter आपने एक्शन कौन से डायरेक्शन में दिया, it will only go in straight line. Number 2, if initial velocity is not zero, initial velocity is not zero, इस केस में मैटर करेगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉल है और ये बॉल इनिशियली मूव हो रहा है लेफ्ट टू राइट, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट. आई कैप प्लस आई कैप, आई कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन, एक्स एक्सिस. अब अगर आपको बॉडी को स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रखना है तो यू हैव टू चॉइसेस. एक तो एक्सेलरेशन आप या तो अपोजिट डायरेक्शन में दो या तो आप उसको सेम डायरेक्शन में दो. सो इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, देन एक्सेलरेशन शुड बी पैरेलल और एंटी पैरेलल. व्हाई? सिंपल. व्हाट इफ मैंने एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दे दिया तो यस, तो ऑब्जेक्ट जो पहले बेचारा स्ट्रेट लाइन में जा रहा था वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, राइट? सो व्हाट हैव यू लर्न? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो डजंट मैटर, गिव इट एक्सेलरेशन, इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग लीनियर मोशन. बट अगर वो पहले से ही मोशन में है तो उस केस में, कौन से मोशन में है, लीनियर मोशन में है, तो उस केस में आप जो एक्सेलरेशन दे रहे हो इट शुड बी इन लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी. इन लाइन मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल. सो इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, then the acceleration must be in line with initial velocity, in line with initial velocity. Okay, ये हो गया आपका पहला टाइप का मोशन that you learn in real life. Then next type of motion, circular motion. Do you remember, अभी हमने सर्कुलर मोशन खत्म किया है 2 दिन पहले. Do you remember यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या था? पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है वो बताओ. Along the tangent at any point. Very good. और एक्सेलरेशन कहाँ पे था? Towards the center. मतलब acceleration is perpendicular to velocity, initial velocity. So if the initial velocity and the acceleration are perpendicular, then the motion will be circular. तो सर्कुलर मोशन कौन डिसाइड कर रहा है? एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन. लीनियर मोशन कौन डिसाइड कर रहा है? एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन. सो दिस इज व्हाट यू हैव सेड, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय initial velocity and acceleration. So here in this case, for the object to perform circular motion, acceleration must be perpendicular to initial velocity. ये आपको पता होना चाहिए. In fact, it should be perpendicular to velocity at every point. सिर्फ इनिशियल नहीं, but it should be perpendicular at every point. Good. Then तीसरा टाइप का मोशन कौन सा था? प्रोजेक्टाइल. लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन क्या आया था? पैराबोला. याद है क्या? पैराबोला हमने बोला था पैराबोलिक पाथ. तो हियर यू कैन से थर्ड टाइप इज पैराबोलिक मोशन. पैराबोलिक मोशन. अब पे अटेंशन हियर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये था आपका y एक्सिस, ये है x एक्सिस. दिस इज x, दिस इज y. ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. डू यू रिमेम्बर हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का एक वेक्टर ड्रॉ किया था समवेयर ओवर हियर, करेक्ट? याद है इनिशियल वेलोसिटी u बार, है ना? अभी मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके भी बताया आपको. व्हेन आई थ्रो द ऑब्जेक्ट
मतलब I am throwing this object at some angle with respect to horizontal and with respect to vertical. So basically the idea is this. For example, ये है direction of इनिशियल वेलोसिटी, राइट? अब जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन कहां पे है इसका? जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, वेयर इज एक्सेलरेशन? वेयर इज एक्सेलरेशन? नीचे. वेयर नीचे? Towards the center of earth, because only force acting is gravity. Very good. So do you notice one thing? ये है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ना तो इनलाइन है ना ही परपेंडिकुलर है. सर्कुलर मोशन में क्या था? परपेंडिकुलर. लीनियर मोशन में क्या था? इनलाइन, पैरेलल और एंटी पैरेलल. सो नाउ यू अंडरस्टैंड कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा. इफ इनिशियल वेलोसिटी and acceleration are parallel or anti-parallel, the motion will be always linear. If velocity and acceleration are perpendicular, the motion will be always circular. अगर ये दोनों ही केस नहीं है तो parabolic motion. Good. So that is why in this case the trajectory was पैराबोला. और बेसिकली हमने इसका तो इक्वेशन भी डिराइव किया था. हमने डिराइव किया था y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. फिर हमने प्रूव किया था, इसको अल्फा बोला था हमने, वो था अल्फा x माइनस बीटा x स्क्वायर, और ये इक्वेशन होता है पैराबोला का. So we have already proven this. I mean, this was already proved in the last lecture, last chapter, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है. So parabolic motion में क्या होगा? In this case, initial velocity is neither parallel, मतलब neither inline मतलब parallel or anti-parallel, nor it is perpendicular to the acceleration. और एक चीज है यहाँ पे, in this case acceleration is also constant, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी चेंज नहीं होगा. याद है क्या वो 4 assumptions of projectile motion? Air resistance is neglected. Variation of g is almost negligible. क्यों? क्योंकि g की वैल्यू चेंज कब होगी? जब आप ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हाइट पे फेंकोगे तभी चेंज होगा. अभी अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में अगर हाइट बहुत ज्यादा हुआ, ओनली इन दैट केस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल चेंज. लेकिन हमने तो अंडर द अजम्पशन सीखा था कि हमारा जो हाइट है इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ अर्थ. तो बाय द वे, इफ द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज वेरी वेरी स्मॉल, देन acceleration remains constant at every point. So here in this case initial velocity is neither inline nor perpendicular to acceleration. Also acceleration is constant. Now आप बोलोगे फिर यहाँ पे भी तो कांस्टेंट था कि यहाँ पे v स्क्वायर बाय r, हर एक जगह पे कितना? v स्क्वायर बाय r. तो जब ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे है तो एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, और जब ऑब्जेक्ट नया पोजीशन पे आएगा, इफ द ऑब्जेक्ट गोज टू अ न्यू पोजीशन हियर, बी पोजीशन पे आ गया, तो इस केस में भी एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो इस केस में भी एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r. तो हियर आल्सो इट इज v स्क्वायर बाय r. बट वेट अ मिनट, डायरेक्शन इज चेंजिंग. जब a पे था तब एक्सेलरेशन इज माइनस i कैप, जब b पे है तो इट इज माइनस j कैप. अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो एक्सेलरेशन इज प्लस i कैप. अगर वही ऑब्जेक्ट नीचे आ गया यहाँ पे तो एक्सेलरेशन इज प्लस j कैप. ओके, तो ये हमने ध्यान नहीं दिया, देना चाहिए था. तो इन दिस केस इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, डायरेक्शन नहीं. डायरेक्शन इज चेंजिंग. बट यहाँ पे नो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट. व्हाई? थिंक
हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, उसने ये ट्रैजेक्टरी फॉलो किया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो या फिर कहीं पे भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू और डायरेक्शन हमेशा सेम ही रहने वाली है। इट इज जी हियर, इट इज जी हियर, इट इज जी हियर, इट इज जी हियर एंड ऑलवेज इट इज डाउनवर्ड्स, राइट? तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। अभी तक हम लोगों ने इतना डिटेल नहीं देखा था। हमने बोला ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है इक्वेशन डिराइव करो, सर्कुलर मोशन है इक्वेशन डिराइव करो। यस, बट यू नीड टू नो कौन डिसाइड करेगा कौन सा मोशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। सो फार व्हाट इज द समरी ऑफ व्हाट वी हैव सीन टुडे? तो आज हमने सिर्फ लॉज ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन देखा है। हमने अभी तक लॉज ऑफ मोशन को टच नहीं किया। लॉज ऑफ मोशन का जस्ट इंट्रोडक्शन। मोशन हम ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर में मोशन स्टार्ट किया था। तो मोशन क्या है हमको पता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, राइट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। जब जब ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके स्टडी को हम बोलेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स। स्टैटिक्स में ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब या तो फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है और ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, मतलब statics is the study of motion, study of object at rest or in equilibrium under the action of various forces. Kinetics में दो parts, kinematics and dynamics. Kinematics में you study the motion but not considering cause of motion, and you normally talk about acceleration, velocity, displacement, क्योंकि force की तो बात कर ही नहीं सकते ना, हमको consider ही नहीं करना है। फोर्स किसने लगाया नहीं पता, डजंट मैटर, बॉडी मूव हो रहा है ना, वी डोंट केयर, इट इज मूविंग। मूविंग तो हमको बताना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 10 सेकंड के बाद कहां जाएगा, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 2 सेकंड में। सो दिस इज ऑल वी नीड टू नो। तो कॉमनली यूज्ड पैरामीटर्स इन काइनेमेटिक्स वेयर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब दूसरा पार्ट है डायनामिक्स। डायनामिक्स में आप मोशन के कॉज का भी स्टडी करोगे। तो यू स्टडी मोशन बट अलोंग विद इट्स कॉज। द कॉज मतलब बॉडी मोशन में क्यों आया, फोर्स, तो यू विल टॉकिंग अबाउट फोर्स। बॉडी रोटेट हुआ, क्यों हुआ, टॉर्क। अगर बॉडी फोर्स है उसके ऊपर, तो जब फोर्स होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन होता है तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो मोमेंटम की बात होगी वहां पे। तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट सच पैरामीटर्स देयर। अब इन रियल लाइफ you have seen many types of motion। उसमें से 3 फेमस, नंबर 1 लीनियर, सर्कुलर। अभी फेमस क्यों है, क्योंकि यू कम अक्रॉस दिस एवरी डे मोर और लेस। इफ यू आर इनटू स्पोर्ट्स, किसी फुटबॉलर ने बॉल को किक मार दिया और वो ग्राउंड पे ही जा रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई पूल खेलता है, उसने बॉल को मार दिया, goes in a straight line. When you play carom, you hit that striker, it goes in a straight line. So you already know straight line motion. अब straight line motion होगा कि सर्कुलर होगा कि प्रोजेक्टाइल होगा, मतलब पैराबोलिक, कौन डिसाइड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 रहा तो फिर आप उसके बाद जब एक्सेलरेशन दोगे तो ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज परफॉर्म लीनियर मोशन। तो ये तो बहुत सिंपल कंडीशन है। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इनिशियली, नो मैटर विच डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन यू गिव, इट विल ऑलवेज गो अलोंग स्ट्रेट लाइन। देन अगर ऑब्जेक्ट, अब यहां से 3 केसेस है इन रियलिटी, इसके बाद 3 केसेस है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो क्वेश्चन ही खत्म, इट इज ऑलवेज गोइंग टू गो इन स्ट्रेट लाइन। बट इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और जो एक्सेलरेशन आपने दिया है, मतलब जो फोर्स आपने दिया है, वो अगर इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में या फिर अपोजिट है, डायरेक्शन में होगा तो वो ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा देगा। हाँ, एक गाड़ी मूव हो रही है, तुम पीछे से और धक्का लगा रहे हो, क्या हो रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है, मतलब हियर एक्सेलरेशन एंड यू आर इन द सेम डायरेक्शन, सो बॉडी कीप्स ऑन गोइंग इन स्ट्रेट लाइन। उल्टा कोई गाड़ी आपके पास ला रहा है तो आप क्या करोगे, उसको रोकोगे मतलब यू आर अप्लाइंग एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी, राइट। सो दिस इज आल्सो लीनियर मोशन। केस नंबर 2, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका इनिशियल वेलोसिटी
मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा था इनिशियली, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी था, अब मैंने इसको परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन लगा दिया, तो नाउ इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर परपेंडिकुलर हो गया तो मोशन विल ऑलवेज बी सर्कुलर। ओके, अब यूसीएम है कि नॉन यूसीएम है वो बाद में देखेंगे, इट इज सर्कुलर। देन केस नंबर 3, केस नंबर 3 इज पैराबोलिक। इफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये ना इनलाइन है, मतलब ना पैरेलल ना एंटी पैरेलल, ना ही परपेंडिकुलर है, so they are making some angle which is not 90, which is not 0, which is not 180, तो इस केस में the path will be parabolic under one condition, and that is acceleration की value change नहीं होनी चाहिए, acceleration should be constant. This is very very important thing. Good. So this is all you need to know in the first lecture of laws of motion.